can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. A mixture has the same properties as that of its component elements and can be separated by physical means. In a mixture of sugar and sand, even if we increase the volume of sugar or sand, the mixture remains the same. So it implies that in a mixture the components can be present in any proportions. When we dissolve common salt in a glass of water, we will obtain salt solution. Similarly, put some mud in a glass containing water and stir it well. We will obtain a mixture with the solid particles of mud dispersed in water. By carefully observing, you will find that in common salt solution, no salt particles settle down to the bottom of the glass. But in the glass containing muddy water, some solid particles settle down to the bottom of the glass. This explains that mixtures have different compositions. Accordingly, mixtures can be classified as homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3. Gas in liquid solution. In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids, hence it is a liquid in liquid solution. In the case of common salt solution, it is a solid in liquid solution. The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of large particles. The size of the particles in a suspension is of the order of 10 to the power of -5 centimeters or larger. In a suspension, the solute particles do not dissolve, but they are suspended throughout the solvent. The muddy water which we prepared is a suspension. Colloids are also heterogeneous mixtures, but they appear like a homogeneous mixture. Milk is a good example of colloids. The particle size in colloids is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. In colloids, the particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal particles cannot be seen with the naked eye because of their small size, but their presence can be observed with the help of an ultramicroscope or an electron microscope. What is the effect of light in homogeneous and heterogeneous mixtures? Let us understand how light affects a colloidal solution. When egg albumin is taken in a glass beaker and some water is added to it, we get a colloidal solution of egg albumin. If we were to shine a beam of light from a torch through the beaker, the light is scattered by the colloidal particles and the path of light can therefore be observed. The light scattering effect. In the case of a suspension, light does not pass through it. In a true solution of salt in water, we will not see the path of light as there is little scattering of light. Things to remember. Mixtures are composed of variable proportions of different substances without chemical bonding and have the same properties as that of its component elements. Homogeneous mixtures have the same uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures consist of visibly different substances or phases. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the substance present in the largest amount is called solvent, and that present in the smallest amount is called the solute.
Suspensions are a heterogeneous mixture of large particles on the order of 10 to the power of -5 in which the solute particles are suspended throughout the solvent. Colloids are heterogeneous mixtures in which the particles are uniformly distributed throughout the solution and the particle size is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. The light scattering effect shown by particles in a colloid is known as Tyndall effect. देखो 25 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, 25 लीटर है, कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें जो तुम्हारा वाटर है W1 लिख लेते हैं। वाटर कितना है इसमें, तो तुम बोलोगे 20%। क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसी बात को हम लिखे और कुछ भी नहीं लिखे। कितना है वाटर, 20%। अब कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। इसमें एक वाटर मिलाया गया, ठीक है, जो इसको कितना बना देगा 90%। कितना मिलेगा 10, और ये हो जाएगा हम लोग का 70। 0 से 0 कट गया। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, तो 7 यूनिट कितने को करेगा 175 लीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड, द वाटर इज रिक्वायर्ड इज 175 लीटर। देखो बता रहे फिर से, जार और गिलास दिख रहा है सभी को, जार और गिलास दिख रहा है सभी को, दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो जार तुमको दिख रहा है ना, इस जार में दूध और पानी दोनों का मिक्सचर है, ध्यान से सुनना। इस जार में दूध भी है, मिल्क भी है और वाटर भी है, जिसमें कह रहा है कि इस जार में जो टोटल मेरे पास जो लिक्विड है इसका 20% जो पोर्शन है, इसका जो 20% जो पोर्शन है वो सिर्फ वाटर है, तो 80% जो बचा वो क्या हो जाएगा मिल्क। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आगे हमको जो वाटर है मींस इसमें जो वाटर का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना है, वाटर का परसेंटेज इसमें बढ़ाना है। कितना करना है 90%, 20 से 90% करना है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कितना इसमें वाटर डालें, तो जितना डालेंगे सारा का सारा क्या डालेंगे, वाटर ही डालेंगे। जितना डालेंगे सारा का सारा वाटर डालेंगे, इसीलिए वाटर को 100% किए। अगर वाटर और मिल्क दोनों मिलाने बोलता तो ये दूसरा केस हो जाता, फिर वाटर को अलग करना पड़ता, मिल्क को अलग करना पड़ता हमको, समझे। यहाँ पर पूरा का पूरा हमको क्या बोला कि 100% क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, इसलिए हम 100% पूरा इसमें पानी डाल दी। तो जब 100% वाटर मिला है तो बोल रहा है ना हाउ मेनी लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड, कितना पानी मिला रहे, तो मैं मान ली कि अगर हम जो मिला रहे पूरा का पूरा क्या है पानी ही तो है, पूरा का पूरा वाटर है, तो क्या कि पूरा का पूरा वाटर डाल दी, तो 100% वाटर है, जिसके कारण मेरा जो मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर जो होगा वो 90% होगा। इससे हम लोग क्या करें, रेशियो वैल्यू जो होता है इसका वो फाइंड कर लिए, ठीक है। अब उसका मिक्सचर जो था, मिक्सचर का वैल्यू हमको पता था कि 25 लीटर शो कर रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 7 यूनिट का क्या होगा 175। इसका मतलब है कि वो 175 लीटर वाटर उसमें ऐड करेगा, तो वाटर जो होगा उसका परसेंटेज 90% हो जाएगा। क्लियर है। गैलन्स ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 20% ऑफ वाइन। ये जो गैलन है 125 गैलन ऑफ वाइन, वाइन का जो 125 गैलन में वाटर कितना है, तो पता चलेगा इसमें जो वाटर है वाइन का, वाइन में जो वाटर है वो है तुमको 20%, ठीक है। कितना है 20%, और टोटल गैलन्स कितना है 125। अब कह रहा है कि हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड, हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन टू 25%। हम इसमें और कितना वाइन ऐड करें, ठीक है, और इसमें कितना वाइन ऐड करें जिससे कि वो जो मिक्सचर है उसका इंक्रीमेंट है परसेंटेज का वो 25% हो जाए। तो देखो अगर हम इसमें वाइन है, सिर्फ वाइन डालना है, ठीक है, सिर्फ वाइन डालना है। इसमें तुमको बता दें कि 125 गैलन है, उसमें वाइन 75 है, 80% है ना, और वाटर जो है वो 20% वाइन में। लेकिन पूरा हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड, अब प्योर वाइन, इस बात को समझना, वाइन में अब ये दिमाग में मत डालना कि वो वाइन का बात करे तो वो फिर से वाटर और वाइन बोल पा, ऐसा नहीं है। वो
अब वाइन जो बोल रहे हैं ना प्योर वाइन है, ठीक है। अब वो प्योर वाइन का बात कर रहा है, शुद्ध वाइन का, शुद्ध अल्कोहल का बात कर रहा है, ठीक है। अब प्योर वाइन जो था वो उसमें मिलाया, ठीक है। कितना मिलाया? अब प्योर मिलाया तो पूरा का पूरा 100%, पूरा का पूरा 100%, जिसके कारण जो वाइन था उसका परसेंटेज कितना हो गया? 25%। बताओ क्लियर है कि नहीं ये बात? ये बोलो पहले, ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, हम लोग को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसका रेशियो कैसे निकाला जाता है, लेकिन तुम लोग चाहो तो इसको यहीं पर जो है कैंसिल कर सकते हो। जैसे ये सब 4, इसको अगर करते तो ये हो जाएगा हम लोग का 0, ये हो जाएगा 25, है ना? सही हो रहा है? 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 15, इसमें से माइनस करते तो आ जाएगा 1। अब भाई 50 यूनिट जो है वो इंडिकेट करा 125 को, 15 यूनिट इंडिकेट करा 125 को, तो 1 यूनिट कितने को करेगा, है ना? तो 125 डिवाइडेड बाय 15, इसको काटते हैं, कैसे करते हैं तो 5 से 25 एंड 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 25.3, 8, ये 8.33 कुछ ऐसे वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। 8.33 ऐसा वैल्यू आएगा। 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 10% ऑफ वाटर, है ना? तो वाटर कितना है? 10%। और जो मिक्सचर है इन दोनों का, मिक्सचर कितना है? 20 लीटर, है ना? मिक्सचर कितना है? 20 लीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%। कितना वाटर इंक्रीज किया जाए, तो टोटल जो इंक्रीज करेगा वो वाटर ही होगा, है ना? तो 100%, जिसके कारण वो हम लोग का 25% हो जाए। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा कितने को? 20 को, तो 1 यूनिट करेगा 4 को, इसलिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 लीटर, 4 लीटर। क्लियर है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज मिल्क लीटर, कितना है? 70 लीटर है। अब कह रहा है दिस मिक्सचर कंटेन 10% वाटर, तो वाटर कितना है? वाटर है इसमें 10%। फिर कह रहा हाउ मेनी वाटर शुड बी मिक्स्ड इन द मिक्सचर टू मेक 25%। 25% बनाना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना और वाटर, तो जितना भी ऐड करेंगे सारा का सारा वाटर ही होगा, तो 100%। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 75, ये हो जाएगा हम लोग 50। 5 यूनिट इंडिकेट करा 70 को, तो 1 यूनिट कितने को करेगा? तो 1 यूनिट तुम्हारा इंडिकेट करेगा 14 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का? 14 लीटर। 25, 55 तो नहीं होगा, चलो देखो। इन द 75 लीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर कितना है? मिक्सचर हम लोग का 75 लीटर। सोडा एंड वाटर, अब देखो इसमें वाटर अगर हम देखें, वाटर अगर हम देखें तो कह रहा है कि रेशियो सोडा एंड वाटर इज 4:1। ये जो हम लोग का 4:1 है, ये सोडा भी है और वाटर भी है, ये दोनों ही है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये सोडा और वाटर दोनों है 4:1। इसमें वाटर कौन है? ये हो गया वाटर, तो वाटर का अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएगा? 20%, है ना? तो वाटर कितना है इसमें? तो वाटर इसमें 20%, ठीक है। वाटर कितना है? 20%। वाटर इज रिक्वायर्ड, कितना क्वांटिटी का रिक्वायर्ड है? किसका? वाटर का। तो वाटर तो हम लोग का 100% ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर ही मिलाया जा रहा है। के कारण जो नया रेशियो बनेगा ना, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, किसका न्यू रेशियो? सोडा और प्लस वाटर, इन दोनों का जो न्यू रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1 का। इसमें से भी हम लोग वाटर को ले लेंगे,
इसमें वाटर कितना है, यहाँ पर वाटर का फ्रैक्शन बन रहा 1/4 इंटू का 100, यार 25% है। वाटर कितना हो, 25, वाटर वाटर वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 75%, परसेंट को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20। कुछ गलत हो रहा है क्या? 75 एंड 20, ठीक है, काटते तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 75 को 5, तो 4 यूनिट करेगा 20। 20 आ रहा है क्या आंसर, एक और बताओ तो। अरे यार, यहाँ 20 हम लिख दिए, 5 होगा ना, तो बोले 1 यूनिट कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग कट जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, कोई बात नहीं है, एरर को ठीक कर लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया, अच्छा से फिर समझाते हैं। देखो, बोल रहे हैं 75 लीटर ऑफ मिक्सचर, ये 75 लीटर है। इस 75 लीटर में जो वाटर है उसका रेशियो दिया हुआ सोडा एंड वाटर का, कितना दिया, 4:1। हमको वाटर से मतलब है, सोडा से कोई मतलब नहीं। तो इसमें वाटर कितना है, 1 है। कितना में, टोटल कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट में 1 यूनिट के वाटर है, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या है हम लोग का, हम लोग का आया यहाँ पर 20%, है ना, 20% आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना क्वांटिटी में वाटर मिक्स करें, तो हमको पता है कि वाटर जब मिला रहे हैं और वाटर का क्वेश्चन है तो 100% वाटर ही हो जाएगा। इसमें हम लोगों का जो है सोडा नहीं है, तो वाटर में 100% कर दिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे नया मिक्सचर बन गया जब पूरा का पूरा वाटर मिला है, तो वो जो मिक्सचर बना वो 3:1 में बन गया। मीन्स 3 सोडा है तो 1 वाटर है, मीन्स टोटल यूनिट है 4, उस 4 यूनिट में टोटल यूनिट है 4, तो 1 यूनिट क्या है, वाटर, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। तो इस 1/4 को हम क्या किया कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या आया 25%। तो 25% नए मिक्सचर में वाटर है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, रेशियो निकाल दिए मिक्सचर का, क्या आया 75 एंड 5, इसको कैंसिल कर दिए 5 से, तो आ गया हम लोग का 25 आएगा ना। कुछ गलत हो गया क्या, 1 मिनट रुको तो, 15, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 15 है, 5 टाइम 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 15। 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, तो 1 यूनिट करेगा 5 को, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू। अब हम जितना बात बोलेंगे उस बात को समझना है तुमको खाली, ठीक है। ये तुम्हारा एक मिक्सचर है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर किस चीज का है, मिल्क एंड वाटर का। अब समझना इस बात को, इस जार में ये जो तुमको दिख रहा है, इसमें 26% वाटर है, ठीक है। अगर 26% वाटर, इसका मतलब है कि इसमें 74% मिल्क होगा। इस बात पे किसी को दिक्कत है, अगर इसमें 26% वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 74%। अब तुमको पता है कि दूध और पानी मिला हुआ है, हम ऐसे दूध और पानी को निकाल दिए, ऐसे गिलास में निकाल दिए। अब बताओ कि क्या इसमें रेशियो चेंज हो गया दूध और पानी का, या अभी भी उतना है, जो चेंज हो गया है दूध और पानी का, या अभी भी जो है उतना ही है, सिर्फ, अरे मेरे हाथ में दर्द कर रहा है, जल्दी बोलो, उतना ही है बिल्कुल, क्योंकि रेशियो तो उतना ही होगा ना, जितना दूध हम निकालेंगे उतना ही पानी। अब वो मिक्स हो गया, आपस में वो डाइल्यूट हो गया ना, दूध और पानी आपस में मिल चुका है, तो जब हम इसमें से निकालेंगे तो दूध और पानी उसी रेशियो में बाहर हो जाएगा और बचेगा, मीन्स 26 एंड 74, मीन्स 26%, 26% वाटर एंड 74% मिल्क है, उस परसेंटेज में भी निकलेगा और बचेगा भी उसी परसेंटेज में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बोलो मेरे, ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। नहीं समझ में आया, परफ्यूम, फिर से, तो 26% को छोड़ो, मान लेते हैं कि हम 26% वाटर के जगह 1 वाटर है
और 3 भाग तुम्हारा दूध है, इतना पानी है। तुम्हारी मम्मी लोग दूध लेती होगी, जब दूध लेती होगी तो पानी जरूर मिलाती होगी, क्योंकि सब लेडीज लोगों का है कि वो लोग दूध में पानी मिलाकर ना पिलाए तो चलेगा नहीं। ठीक है, मेरे घर में भी वही है। तो दूध ली, पानी जरूर मिलाएगी, उसमें कितना भी बोला जाए वो मिलाएगी अपना मन से ही। तो मान लेते कि 1 भाग पानी 3 भाग दूध है। हम क्या किए कि इसमें से कुछ भाग ऐसे गिलास में डाल दिए। ठीक है, अब जो इसमें बचा, अब जो दूध और पानी का रेशियो बचा, अभी भी तो 1:3 ही रहेगा ना, रेशियो तो कम नहीं होगा, रेशियो वही रहेगा, रेशियो रिमेनिंग वही रहेगा। और जो गिरेगा ना इसमें, ऐसे जो दूध और पानी देखो जो गिर रहा है ना, ये भी 1 और 3 में ही गिर रहा है, क्योंकि 1 और 3 में इसका मिश्रण बना हुआ, दूध और पानी, पानी दूध में क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो गिरा ये भी 1:3 में गिरा, इसमें जो बचा वो भी 1:3 में ही बचा। बस इतना सा बात समझाना चाह रहे, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी बनेगा। एक मिक्सचर है, मिक्सचर में मिल्क कितना है, मिल्क लेके बनाते हैं, तो टोटल मिक्सचर जो हम लोगों का नहीं दिया। अब ये बताओ कि हम रिप्लेस किए, जैसे हम तुमको बोले कि हम ऐसे गिलास में डालें। ठीक है, जैसे हम ऐसे ग्लास में कुछ डाले। ठीक है, तो जो निकला इसमें से, जो निकला इसमें से वो 26 और 74 के रेशियो में निकला, है ना, 26% और 74 के रेशियो में निकला, और बचा भी उतना ही, जैसे 3 और 1 का तुमको हम बताएं। अब उसकी जगह पर उसने क्या किया कि जो निकाला उसी की जगह पर उसने क्या किया कि प्योर मिल्क डाल दिया, है ना, क्या डाल दिया, प्योर मिल्क डाल दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर इसमें से मेरा 74% मिल्क है, अगर हम 74% मान लेते निकालिए, तो बचेगा भी क्या, बचेगा फिर भी 74%। बताओ, इस बात पे कोई दिक्कत है, इस बात पर कोई भी दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है इस बात पे तो बताओ। नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अब कह रहा है कि 7 लीटर प्योर मिल्क डाला, एक बूंद पानी नहीं, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा 100% हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% हो गया। अब इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक नया मिक्सचर बन गया। ठीक है, और ये क्या था, जो 100% डाला गया ये रिप्लेस वैल्यू था, रिप्लेस था, इसी को ना रिप्लेस किया गया, और ये रिमेनिंग बच गया, ये मेरा रिमेनिंग बच गया। अगर ये मेरा दूध और पानी है, ये मेरा दूध और पानी है, इसमें से दूध और पानी में से निकाल दिया था, तो इसमें बचा जो कितना बचा, इसमें अभी भी मिल्क 74% है और वाटर 26% है, बचा भी उतना, इसीलिए हम रिमेनिंग वर्ड का यूज किए। इसका मतलब है कि अभी भी 74% मिल्क इसमें है ना। और प्योर मिल्क को हम 100% क्या किए, क्योंकि जो निकाले रिप्लेस उसको क्या किए, पूरा 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 का पूरा जो प्योर मिल्क से किए, और ये जो पूरा का पूरा जो मेरा प्योर मिल्क है 100% है, और ये रिप्लेस कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, इस बात को। देखो इस बात को थोड़ा सा समझो, रिप्लेसिंग वैल्यू है ये। ठीक है, ऐसे बन क्या रहा है, तो मेरा 76% बन रहा है, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा तुम्हारा 24 12। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्वांटिटी कितना था। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इनिशियली क्वांटिटी। अब इनिशियली क्वांटिटी में से हम रिप्लेस और विदड्रॉ, दो तरह का वर्ड तुमको दिखेगा, रिप्लेस एंड विदड्रॉ। अगर हम माइनस कर दे तो बचेगा क्या, रिमेनिंग। मतलब ये बात क्लियर है, अगर हम इनिशियल क्वांटिटी जितना क्वांटिटी था उसमें से रिप्लेस या विदड्रॉ को अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी ही तो बचेगा। अब देखो रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है, इनिशियल कितना है, इनिशियल हमको ही पता नहीं, लेकिन जो रिप्लेस है, जो रिप्लेस किया वो वैल्यू कितना है, वो वैल्यू 1 है, और रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 12। इसका मतलब है कि इनिशियली वैल्यू जरूर 13 होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, इनिशियली वैल्यू जो है मेरा वो 13 होगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 1 यूनिट निकाल हुआ, ये 1 यूनिट प्योर मिल्क है जो इंडिकेट कर रहा है 7 लीटर को। तो हमसे पूछ रहा है कि जो क्वांटिटी मिक्सचर का कितना था, तो 13 इंटू
13 इंटू 7 91 लीटर, टोटल तो 91 लीटर। इसको थोड़ा उसके जितने भी ट्रांजेक्शन है खुद पे रख के करना, ये भी वही चीज है मैथ्स भी, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, द डाइल्यूटेड अल्कोहल कंटेन 8 लीटर ऑफ अल्कोहल। कितने अल्कोहल है, 8 लीटर, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, replace with the pure alcohol if there was initially 32 liter of water, 32 लीटर ऑफ वाटर, वाटर कितना है इनिशियली 32 लीटर। तो यहां से समझो, इसको हम करते थे, आ जाएगा हम लोग का 1:4। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो। अब पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान दो। अब हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, तो सुनना इस बात को। द डाइल्यूटेड अल्कोहल कंटेन ओनली 8 लीटर ऑफ अल्कोहल, मीन्स एक डाइल्यूटेड अल्कोहल है, उसमें 8 लीटर अल्कोहल है, ठीक है। डाइल्यूटेड है मतलब वाटर में डाइल्यूटेड है, एंड द रेस्ट इज वाटर, एंड द रेस्ट इज वाटर, और बाकी जो है वो हम लोग का वाटर है। इसका मतलब है कि पानी और वाटर एंड अल्कोहल दोनों मिक्स है, इन दोनों का मिक्सचर है। फिर कह रहा है ए न्यू मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30%, मीन्स एक नया मिक्सचर बनाया गया, उस नए मिक्सचर में अल्कोहल कितना है 30% है। तो नए मिक्सचर बनाने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि कुछ क्वांटिटी को विड्रॉ किया गया। अगर कुछ क्वांटिटी को विड्रॉ किया गया, इसका मतलब या तो रिप्लेस है या तो विड्रॉ। अगर विड्रॉ है तो रिप्लेस है, रिप्लेस है तो विड्रॉ। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इज टू बी इन्फॉर्म बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल, मींस उसमें ना डाइल्यूटेड जो अल्कोहल था उसको रिप्लेस कर लिया। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विथ प्योर अल्कोहल, मींस हाउ मेनी लीटर वाटर मिक्सचर, मींस जो उसका जो मिक्सचर था ना उसको कितना में रिप्लेस किया गया और कितना प्योर वाटर अल्कोहल के साथ उसको रिप्लेस किया गया। इफ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर, स्टार्टिंग में 32 था, तो 32 में 8 था हम लोग का अल्कोहल, और बाकी 32 के हम लोग का इसमें वाटर है, और इसका हम लोग रेशियो निकालिए 1:4, ठीक है। कहना चाह रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो अल्कोहल था उसमें 32 लीटर वाटर था, बोल रहा है ना, एंड द रेस्ट इज वाटर, यही है हम लोगों का 32 लीटर, और क्या है बाकी 8 लीटर अल्कोहल। इतना समझ में आया कि नहीं आया मेरे बात, ये बताओ पहले, इतना समझ में आया या नहीं आया। धीरे धीरे बता रहे क्योंकि ये बहुत मजेदार है और हमको बड़ा मजा आता है निकालने डालने ये सब में, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली कर करके हर क्लास में बता देते हैं। तो क्या है 1:4, हम क्या करेंगे यहाँ से, हमको पता है कि हम परसेंटेज को कंपेयर करते हैं अल्कोहल पे अल्कोहल, ठीक है। अब इधर अगर हम ले लें तो यहाँ हो गया अल्कोहल, और यहाँ पर आ गया हम लोग का प्योर अल्कोहल, है ना, यहाँ पे आ गया हम लोग का अल्कोहल। तो अल्कोहल का परसेंटेज तो पता होना चाहिए, जो हमको नहीं है हम निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का अल्कोहल है कितना में, 4 और 1 5, तो 100 पे कितना होगा, यहाँ से हम फ्रैक्शन का परसेंटेज जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कितना अल्कोहल, अल्कोहल है 20%। बताओ किसी को दिक्कत है इस बात पे, इस बात पे किसी को दिक्कत है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ कि अल्कोहल इसमें 20%, हम तुमको अभी बताए कि ये वाटर और अल्कोहल है, ये पानी और अल्कोहल डाइल्यूटेड है, ये 8 लीटर अल्कोहल है और 32 लीटर पानी है, जिसका रेशियो है 1:4। हम क्या किया, ऐसे करके गिरा दिया, ऐसे निकाल दिया। अब ये बचा, अब इस मिक्सचर में भी क्या सेम रेशियो होगा वो अल्कोहल और वाटर का, तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ। जैसे दूध और पानी है, क्या पानी निकाल देने से मिक्सचर का रेशियो चेंज होता, कभी नहीं। मिक्सचर का रेशियो हमेशा हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, जब तक उसको उबाला ना जाए या इस तरह का कुछ ना किया जाए, ठीक है, तब तक ये हम लोग का कांस्टेंट रहेगा। हम तो मिक्सचर निकाल रहे ना, हम तो मिक्सचर निकाल रहे, हम तो इसमें से सिर्फ मिक्सचर निकाल रहे, तो मिक्सचर भी उसी अनुपात में निकलेगा जो अनुपात में इसमें बचा रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि जितना हम निकालेंगे उतना ही रहेगा। अब देखो, अब जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी मम्मी हमको 1 गिलास दूध दी, ठीक है। अब मेरी मम्मी पानी मिलाने में बहुत माहिर है, वो मान लेते कि 1 भाग दूध और 3 भाग पानी मिलाकर हमको दिया 1 गिलास दूध, उसका आधा पी लिया, हम आधा छोड़ दिया, बोले नहीं पियेंगे, तो क्या उसमें मिक्सचर का जो रेशियो था वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो डाइल्यूट हो गया।
अभी भी उसमें वही 3 और 1 का ही बात रहेगा। अब मेरी मम्मी बोलेगी अच्छा ठीक है लाइन उसको थोड़ा सा जो है सुखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको उबाल देते हैं जिससे से पानी हट जाए, तो उस कंडीशन में अलग हो जाएगा, ठीक है। वो इस बात को समझना, शायद ज्यादा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर के घर में ऐसा होता है, अगर जो दूध नहीं उनके घर में, जो दूध बेचते हैं उनका छोड़ दो, ठीक है। 20%, अल्कोहल कितना है, 20%। अल्कोहल का बात हो रहा है, अब क्या किए ना, ऐसे करके निकाल दिए, ठीक है। ये हम इसको जो है निकाल दिए। अब निकाले ये वाला जो था वापस इसमें प्योर अल्कोहल डाले, प्योर अल्कोहल, तो ये पूरा का पूरा प्योर अल्कोहल है, इसमें एक बूंद पानी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्योर अल्कोहल मिला रहे हैं तो वो अपने आप में 100% है ना, उसका परसेंटेज उसका लिक्विड और मिक्सचर में देखा जाता है, वो अपने आप में 100%, इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, किसी भी तरह का मिश्रण नहीं, प्योर का प्योर अल्कोहल है और इसमें मेरा मिलावट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये वाला जो वैल्यू है ये रिप्लेसिंग है, ये रिप्लेस कर रहे हैं ना इसको, ये रिप्लेस है। और ये हो गया हम लोग का रिमेनिंग बचा हुआ। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? इसको रिमेनिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। निकालने के बाद जो बचा हुआ वो भी बोल दो, एक ही बात है दोनों, चाहे डालने वाला बोलो या बचा हुआ बोलो, आएगा 20%, दोनों में 20% का रेशियो रहेगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सब सारा मिक्सर करने के बाद इसमें जो अल्कोहल है कहाँ गया, अल्कोहल 30%, अल्कोहल विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल इज 30%। अब करने के बाद मीन्स इसमें से हम 20% निकाले तो 20% ही बचा, और क्या कि एकदम प्योर अल्कोहल 100% डाल दिए। अब इनके मिक्सचर से जो नया मिक्सचर बचा उनमें 30% का अल्कोहल है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 70, हो जाएगा 10, 0 से 0 कट गया तो रेशियो आ गया हम लोग का 7:1। अब देखो, अब यहाँ पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि इनिशियली, है ना, इनिशियली में से अगर हम रिप्लेस और विड्रॉ को निकाल दें तो हम लोग का रिमेनिंग पर रहेगा शेष, है ना। तो अब बताओ कि रिप्लेस कितना हो रहा है, तुम बोलोगे रिप्लेस 1 यूनिट का है और रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है तुम्हारा 7 यूनिट, इसका मतलब इनिशियली 8 होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ब्रैकेट कर दे ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले हमको। बिल्कुल होगा। अब ये 8 यूनिट तुम्हारा जो है ये इंडिकेट कर रहा है 40 लीटर। अब तुम बोलोगे 40 लीटर का, तो इनिशियली याद कर लो, इनिशियली क्या था, इनिशियली में 32 लीटर पानी था और 8 लीटर हम लोग का अल्कोहल था, तो दोनों मिलाकर 40 लीटर हुआ, 40 लीटर हुआ मेरा। तो 8 यूनिट 40 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट कितने को कर रहा है, 5 को। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निकालना था हम लोग को, हाउ मेनी लीटर वाटर मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विथ प्योर, ये रिप्लेस वैल्यू है मींस 5। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि वेसल है उसमें मिल्क एंड वाटर जो रेशियो 7:5, ठीक है, मिल्क एंड वाटर में जो रेशियो है वो है 7:5। कि मिल्क कितना है तो तुम बोलोगे 7/12, और वाटर पूछेंगे तो तुम बोलोगे 5/12, ठीक है। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये परसेंटेज से अगर हम इसको कैलकुलेट करते ना तो फिर ये फ्रैक्शन वैल्यू, फिर भी फ्रैक्शन वैल्यू ही आता, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लेकर के बनाएंगे, ठीक है, वाटर को वाटर के साथ। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 9 लीटर मिक्सचर को निकाला जैसे इसका पहले बताए थे, एंड रिप्लेस बाय सम अमाउंट ऑफ वाटर, और उसको वाटर से रिप्लेस किया, ठीक है। अब देखो वाटर था कितना, रिप्लेस कितना गया था कितना, 5/12 बचा, निकाल लेने के बाद इतना ही बचा ना, और वाटर मिलाया कितना, तो क्वेश्चन होगा कि पूरा का पूरा पानी ही मिलाया, सम अमाउंट, उस वाटर में तनिक सा भी दूध नहीं था, इसका मतलब 1/1। ये क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, पहले ये बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं है ये बोलो पहले, ठीक है। तो ऐसा करेगा ना तो एक नया मिक्सचर बनेगा, नए मिक्सचर में वाटर और जो मिल्क होगा वो रेशियो वो 7:9 होगा, इसका मतलब वाटर कितना है, वाटर है 7/16 और मिल्क कितना वो है 9/16,
क्लियर है कि नहीं ये बात बताओ। उल्टा लिख दी ना, मिल्क और वाटर था ना, मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है हम लोग का इसमें 7 है यूनिट है, तो वाटर है 9। फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालते हैं वाटर का तो आ जाएगा 9। मतलब जो नया मिक्सचर बना उसमें वाटर कितना है 9/16। तो देखो इस बात में हमको पता है कि यहाँ पे हम लोग का 12 है, यहाँ पे 16। कैसा वैल्यू लेंगे तो ऐसा वैल्यू क्या आएगा, तो ऐसा वैल्यू आएगा इन दोनों का जो एलसीएम है, और एलसीएम को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान है। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, मीन्स 12-16 से कोई एक ऐसा वैल्यू लेने पड़ा जो दोनों से कट जाए। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू आता है 12-24, 16 को देखेंगे, 16 16 16 3 32 48 48 आएगा। 12 से भी कट जाएगा, एलसीएम आ गया 48। तो यहाँ भी 48 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 48 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी 48 से। ऐसा करते हैं 4 बार में, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा मेरा 48 को करते हैं तो ये आ जाएगा 27। तो 48 में से 7 1 2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हम लोग का 7। रेशियो निकालेंगे आ जाएगा 3:1। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। हमको पता है कि ये वाला वैल्यू मेरा रिमेनिंग है और ये वाला वैल्यू मेरा रिप्लेस है, वाटर से रिप्लेस किया गया था। अब वही वाला अपना तरीका, इनिशियली माइनस रिप्लेस ड्रॉ इज इक्वल टू रिमेनिंग। तो रिमेनिंग यहाँ पर मेरा है, रिमेनिंग कितना है 3 यूनिट है, और रिप्लेस कितना है 8 यूनिट है। इसका इनिशियली जरूर 4 यूनिट होगा, इनिशियली मेरा जरूर 4 यूनिट होगा, है ना, इनिशियली मेरा 4 यूनिट होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द इनिशियली अमाउंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का जो इनिशियली था वो कितना था, तो देखो 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, मींस ये जो विथड्रॉ कर रहा है 1 यूनिट का वैल्यू कितना हम लोग का 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो इनिशियली आ गया मेरा 36, है ना, इनिशियली क्या आ गया मेरा 36। अब बोल रहा ऑल्सो फाइंड इनिशियली अमाउंट ऑफ मिल्क। स्टार्टिंग में मिल्क कितना था 7/12। इसका मतलब जब 36 टोटल मिक्सचर है इसको 7/12 क्या हो जाएगा मिल्क। इसका मतलब मिल्क हो गया मेरा 21 लीटर। कह रहा है कि 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। 50 लीटर मिक्सचर इसमें वाटर और मिल्क क्या है, वाटर इज ओनली 20%। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को बताया है, याद आ जाएगा। वाटर कितना है इसमें, वाटर 20%। कह रहा था मिल्क मैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर। उसने इसी मिक्सचर का 10 लीटर दे दिया, तो 10 लीटर जब दिया तो उसमें 20% वाटर था और 80% मिल्क था, लेकिन जब बचा मीनिंग रहा उसमें भी यही बचा, है ना, 20% वाटर ही बचा। इस बात को सिर्फ तुमको समझना क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। उसमें देखे तो बचा भी क्या 20% ही बचा, ठीक है, और फिर रिप्लेस किए उसको। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरह का, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, रिमेनिंग और रिप्लेस का, रिमेनिंग और रिप्लेस वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है कि 10 लीटर 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू कस्टमर एंड ही एडेड अप टू 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अब वाटर मिलाया गया, हमको लीटर से मतलब नहीं है, जो 10 लीटर मिलाया गया, जो 10 लीटर मिलाया गया था उसमें पानी कितना, दूध कितना था, तुम बोलोगे पानी पूरा 100% है, पानी पूरा 100% है। अब देखो क्या कह रहा है कि जब हम लोग का नया मिक्सचर जो बन रहा है, नया मिक्सचर कहाँ चला गया, 10 liter of this mixture to customer and he added up to 10 liter of pure water in the remaining mixture. The percentage of water in the final mixture is, ठीक है, इस कंडीशन में जब ऐसा आ जाए ना तो हमको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है, तो तुम बोलोगे 80 का। इसका मतलब है कि 20 से वाटर को 100 जब बनाया गया तो 80% वाटर को बढ़ाया गया, है कि नहीं, 80% ही वाटर को बढ़ाया गया, 80% ही वाटर को बढ़ाया गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिमेनिंग जो है वो कितना है हम लोगों का 50 लीटर है, तो रिमेनिंग कितना है 40 है, क्योंकि 10 लीटर तो क्या किया है दे दिया है, और रिप्लेस कितना से किया है 10 लीटर से तो रिप्लेस किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। मान लो कि कोई मिल्क मैन है, उससे 50 लीटर था,
50 में से 10 वो दे दिया किसी को, बचेगा 40 से। इधर समझे, दिया कितना, रिप्लेस कितना से कर रहा है, 10 लीटर से। दूध और पानी 10 लीटर निकाल के दे दिया किसी को, बेच दिया, और फिर से क्या किया कि 10 लीटर पूरा का पूरा 100% पानी मिला दिया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? देखो अटेंडेंस मिलता तो कौन कौन है प्रेजेंट लिख के। अंजलि, लक्ष्मी, रेनू, प्रद्युम्न नहीं है लग रहा। चलो ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम निकालते तो हम लोग को 4:1 में आ रही है रेशियो। इसका जो 80 है ना, इस 80 को 4:1 में बांट दो, 4 और 1 में। अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 80 इंटू 4/5, 64, और ये आ जाएगा मेरा 80 इंटू 1/5, ये आ जाएगा 16। ये वाला बताए थे ना इससे पहले, इस तरह का बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बोलो पहले। अब तुमको बीच का ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आ गया 64 और ये आ गया भाई 16। तो 100 बड़ा है, 100 में से माइनस कितना करेंगे, 64 आ जाएगा 36। क्या जगह में 36। एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है, ठीक है, और वो उसके बदले उसमें दूसरी वाइन डाल देते हैं, 20% स्प्रिट है। तो नया जो मिश्रण बनता है उसमें 30% का स्प्रिट होता है। अब एक बात बताओ तुम, कि एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है, और अगर हम स्प्रिट का बात करें, वाइन चुराता है तो उसमें 50% स्प्रिट है, और वो क्या किया कि उसमें से उसके बदले उसमें दूसरी वाइन, कुछ वाइन चुराया, मीन्स वो कुछ वाइन चुराया जिसमें 50% स्प्रिट है, समझ इस बात को, ठीक है। चोरी करने के बाद जो वाइन उसमें बचा, जो रिमेनिंग रहा, ठीक है, जो रिमेनिंग रहा, अभी भी तो स्प्रिट उसमें 50% ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ। अभी भी तो 50% ही रहेगा, क्योंकि वो रेशियो कम नहीं होगा, लिक्विड कम, क्वांटिटी कम होगा। रेशियो कभी कम नहीं होता है जब तक उसको कोई हीट ना दिया जाए या कुछ ना किया जाए, ठीक है। हीट भी जब हम देते हैं ना तो वाटर जो होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहना है कि एक दूसरा वाइन मिलाया गया, ठीक है, एक दूसरा वाइन मिलाया गया, तो उस दूसरा वाइन में भी तो स्प्रिट है। कितना स्प्रिट है, तो उसमें जो स्प्रिट है उस 20% है, और बाकी का 80% है वो वाटर है। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को जब मिला दिया आपस में तो एक नया मिश्रण तैयार हो गया, और उसमें 30% का स्प्रेड है। तो हम यहाँ पे देखे थे हम लोग का 10, ये हो जाएगा हम लोग का 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आ गया 1:2। ये है रिप्लेस। अब तुमको आगे का पता ही है प्रोसेस क्या करना है ना। इनिशियली माइनस रिप्लेस एंड विथड्रॉ इज इक्वल टू रिमेनिंग। इस तरह से जो प्रैक्टिस करा रही है, कहावत बनवा रही, एग्जाम में इतना लिखना नहीं, पता चल जाएगा तो ये सब लिखना नहीं, डायरेक्ट कर लोगे तुम, ठीक है। तो रिप्लेस कितना है भाई, 2 यूनिट का। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1 यूनिट। इसका मतलब इनिशियली कितना हो जाएगा, 3, है ना। और यहाँ पे तो कोई वैल्यू हम लोग तो बोलो तो ज्ञात करें कि असली वाइन कितनी चुराई गई। असली वाइन कितनी चुराई गई, जितना निकाला उतना ही चुराई गई, है ना। टोटल है 3 यूनिट, 3 में से 2 चोरी कर लिया, तो 2/3 ही मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा, और यही आंसर होगा, किसी वैल्यू नहीं दिया हुआ। बताओ, क्लियर है। एल्कोहल कितना है उसमें, अगर हम एल्कोहल का बात करें तो 4% एल्कोहल है, ठीक है, एंड द रेस्ट बाकी का बाकी पानी है। सम क्वांटिटी ऑफ द, कुछ क्वांटिटी निकाल दिए, कुछ क्वांटिटी निकालेंगे ना तो 40% एल्कोहल ही निकलेगा, और जो क्वांटिटी बचेगा उसमें सेम रेशियो है, रेशियो नहीं बदलेगा। सिर्फ क्वांटिटी जो अगर मान लो 1 लीटर का है, क्योंकि हम 40 ml निकाल लिए, तो 40 ml यही होगा, 40% अल्कोहल होगा और 60% वाटर होगा। बाकी जो 60% उसमें बचेगा उसमें पे अल्कोहल 40% होगा, है ना। रेस्ट जो 60 वाटर ही होगा। इस बात को तुमको एकदम दिमाग में बैठा लेना, अच्छा मिला और कुछ नहीं, ठीक है। विद द सम क्वांटिटी ऑफ एन अनदर containing 25%, now the water bottle contained alcohol, find what part of the wine was water। अब देखो एक अनदर अल्कोहल है, ठीक है, अनदर अल्कोहल है। अब वो जो अनदर अल्कोहल है उससे कितना ले रहा है,
उससे जो ले रहा है क्वांटिटी वो तो नहीं दिया है, लेकिन उसमें 25% अल्कोहल है। मीन्स ये हो गया हम लोग का वैल्यू या विड्रॉ वैल्यू, जो बोलना है बोलो, और ये हो जाएगा निकालेगा तो बचेगा इसी रेशियो में। अब बोल रहा है कि उन दोनों को जब मिलाया गया है, नाउ द बॉटल कंटेन 30% अल्कोहल, तो 30%, ये हो जाएगा हम लोग का 5 और ये हो जाएगा 10। रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1:2। क्वेश्चन में क्या पूछा है? What part of the wine was taken out of the bottle? ठीक है, हमको पता इनिशियली है, इनिशियल विड्रॉ या रिप्लेस करते हैं तो हम लोग का रिमेनिंग पार्ट आ जाता है। ठीक है, क्या विड्रॉ क्या रिप्लेस कर रहे हैं? रिप्लेस करें हम लोग 2 यूनिट का, ठीक है, और रिमेनिंग बचा है 1 यूनिट, इसका मतलब इनिशियली 3 होगा। और फ्रैक्शन वैल्यू पूछा, व्हाट पार्ट पूछा, तो 2 पार्ट है, कितना 3, तो आंसर हो जाएगा 2.3। मतलब